नाज़रीन, कौन शख्स बेगुनाह है या कौन गुनहगार, इसको जांचने का जो पैमाना है वो कानूनी शहादत ऑर्डर है। इंसाफ के इस सफर में एक जज को फॉर्जरी, फ्रॉड और पर्जरी से ना सिर्फ ये बचाता है बल्कि नॉर्टन इसके बारे में लिखता है, इट इज बाय दिस दैट द जज सेपरेट्स वीट फ्रॉम चैफ अमंग द मैस ऑफ फैक्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड बिफोर हिम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसमें भी पर्टिकुलरली हम आज की एपिसोड में प्री ट्रायल का जिक्र करेंगे। मैं हूं अब्दुल्ला जावेद and I am Yusuf Bangash. Today we have a very special guest, Sir Professor Dr. Usman Hamid. Welcome, sir. Welcome to the show. Sir is currently serving Dean at the Bahria University School of Law. Apart from that, he has previously served Civil Judge cum Judicial Magistrate and Director Punjab Judicial Academy. Sir has done his PhD from the University of Glasgow. Almost there are 35 HEC publication, as well as sir has a handful of experience in teaching as well as in academia. When it comes to administration, sir has served as a principal at various college at various universities. Sir, welcome to the show. Sir, when it comes to a criminal procedure, or when it comes to the criminal law of the land, so it comes into motion when the FIR is lodged. Again, as Abdullah said, whereas while judging, adjudicating upon the matter, so they separate the wheat from the chaff. Similarly, जब हम criminal procedure की बात करते हैं, तो there are different stages of criminal procedure. For instance, we had a pre-trial stage and then it followed by the conviction and acquittal. लेकिन जब हम pre-trial stages की बात करते हैं, so हम FIR पे आ जाते हैं. अब FIR की क्या evidentiary value है, as per the कानूनी शहादत और as per the evidence law? First of all, thank you very much for inviting me to this very important and somewhat neglected sector of the legal education, the sea of, or one can say the vast sea of Qanun Shahadat order or law of evidence. This is something on which very little debate is taken place in various colleges in parts of Pakistan. I wish we had a panel of discussants next time, because if you have panel of guests, panel of discussants, certainly multifarious views come before you, and of course nobody can perceive a single thing unilaterally, and there cannot be uniformity in your perception, in human perception. There is always diversity in human perception, but certainly your question is very pertinent, that the machinery of law begins to move with the launching or lodging of the FIR, and article section 154 of the CRPC is certainly most important in this respect, that anybody who has seen the commission of a offence which is cognizable, they can lodge a report under section 154. The evidentiary value, when it comes to evidentiary value, we have to bear in mind two things, and I mean, before the start of discussion, I would like to make it clear that evidentiary value has to be distinguished from admissibility of evidence. There are many kinds of evidence which are given in the Qanun Shahadat order. Primarily, it is meant to tell you, primarily the purpose of Qanun Shahadat is to tell you what kind of evidence is admissible and what is not admissible in a court of law. But at the same time, there is another thing which is called appraisal of evidence. That's what judges are meant to do while writing their judgments. They are the ones who give or assign weight to different kinds of evidence which come before them. But initially, all the evidence, but certainly every piece of evidence which goes to a trial, it has to pass through the test of admissibility, and the admissibility test is given in
articles of Qanun Shahadat order, and of course FIR has its one of the one can say it is at the time of appraisal of evidence, it is treated one of the most important documents upon which the fate of the trial will be hanging on, or it will be based. So I would say that if the narration of the FIR is somewhat different than what the PWs deposed before the Honorable Trial Court, then of course there is very little chance of prosecution getting the accused convicted, or the because PWs are their statements are judged against whatever is said in the FIR, and the delay in lodging the FIR is very fatal to the prosecution case. It is deemed to be fatal to the prosecution case. You have to explain that what are the reasons because of which the delay was caused. Then there is different kind of medical evidence. For example, if the death of the victim is caused by blunt edge or blunt weapon or a sharp edged weapon, whereas the FIR says that the death was caused by gunfire, then the entire prosecution case comes down to the drain. And so I would say that it does have one of the most critical value when it comes to appraisal of the evidence. Otherwise, if you could talk about the admissibility in that perspective, of course, it is just it moves the machinery of law, and once the FIR is lodged, then the IU comes out of his den and goes to the site where the crime took place, takes inspection note and takes the things into his custody which are recovered from the crime scene. So इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसा आपने अभी डिस्कस किया एक्शन में आ चुका है, वो जाएगा, जायज़ा लेगा और मतलब लोगों के बयानात लेगा और उसको पुलिस डायरी में मेंशन करेगा जो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट की है, उसकी कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक मतलब क्या एविडेंशियरी वैल्यू है और उसको कंसीडर करते भी हैं या नहीं करते? नहीं, सर्टेनली पुलिस डायरी की भी एक एविडेंशियरी वैल्यू की ज़रूर है, और जज कैन ऑलवेज कॉल फॉर पुलिस डायरी इन ऑर्डर टू clarify his mind about the circumstances of the case, or in order to acquaint himself with the circumstances of the case. लेकिन ये accused has no right to look at the diary unless it is used by the police officer to refresh his memory, and only in that situation the accused would have the right to have a look at the diary. Otherwise it is a privileged document. सर, तो ऐसे FIR और ये जो पुलिस डायरी होगी, ये मतलब corroboratory इनकी इम्पोर्टेंस है कि corroboration के लिए ज़्यादातर इनकी कंसिडर किए जाएंगे। FIR तो वन कैन से कि ये सर्टनली एक जो है वो ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर कोई जो है वो कोई लकूनाज रह जाते हैं तो it would be very difficult to get conviction against the accused, because you have to prove your case beyond any shadow of doubt. तो वो shadow of doubt वहीं पे create हो जाएगा कि जब complainant और उसके आई witnesses का वर्शन कुछ और होगा। और अब तो माशाल्लाह सुगरा बीबी केस के बाद और ज़्यादा ये आ गई है चीज़ सामने के FIR की सेंक्टिटी बढ़ गई है कि एक ही FIR होगी, वट एवर वर्जन्स द टू पार्टीज वांट टू गिव, दोज वर्जन्स कैन बी रिकॉर्डेड एज स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161, लेकिन देयर कैन नॉट बी मोर देन वन FIR। तो FIR की तो है काफ़ी ज़्यादा
उस सेंस में हो जाती है इम्पोर्टेंस। लेकिन ये पुलिस डायरी है, इसको कोर्ट अपनी असिस्टेंस के लिए ज़रूर यूज़ कर सकती है, लेकिन ये यूजुअली जो हमारे एक्यूज्ड है उसको उसके लिए उसके पास राइट है। सर ये तो स्टेप्स हो गए हमारे, कॉग्नाइजेंस पुलिस लेनी, पुलिस डायरी। नाउ हियर कम्स अ स्टेज कि डिफरेंट विटनेसेस आते हैं, एक्यूज भी आते हैं, कंप्लेनेंट भी आते हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। तो अब इन स्टेटमेंट्स की क्या वैल्यू होगी? हाँ, ये स्टेटमेंट्स जो है इनकी प्राइमरीली वही है वैल्यू कि ये एट द टाइम ऑफ ट्रायल they would either contradict the accused or the witness, or they would corroborate their statement. So if they corroborate the statement, or if they corroborate the testimony of a witness, so certainly the weight which the judge will assign later on to that testimony, that will certainly increase or add on. लेकिन ये जो है if the statements are contradictory, so of course that will have its bearing on the prosecution case, and जो है it can come down to its knees. The prosecution case के लिए तो छोटी सी भी, क्योंकि ये एक वाहिद वो चीज़ समझने वाली जो है वो ये कि ये unlike a civil case where the matter is decided on the basis of superior evidence or primacy of evidence, और जो है वो यहाँ पे जो है in criminal cases the matter is decided on the basis कि the guilt is proved beyond any shadow of doubt. तो ये shadow of doubt काफ़ी हद तक FIR में जो discrepancies होती हैं विटनेस टेस्टिमनीज के साथ, उनकी वजह से प्रूव हो जाती वो उनकी वजह से वो अराइज हो जाती है। और फिर ये कि एक और बहुत सी कार थेफ्ट की FIRs हैं या फिर डकैती की FIRs हैं, तो इनमें यूजुअली दीज आर ब्लाइंड FIRs वेयर विक्टिम्स आर नॉट नोन टू द एक्यूज, सो देयर हैज़ टू बी एन आइडेंटिफिकेशन परेड। अब ये दिस इज मैंडेटरी अपॉन द प्रोसिक्यूशन कि देयर हैज़ टू बी जो है आइडेंटिफिकेशन परेड, अदरवाइज ये जो होती हैं अनविटनेस्ड FIRs और उनका काफ़ी हद तक वैल्यू जो है कम हो जाती है उससे। और मतलब बेसिकली तो क्राइम रिपोर्ट, अदरवाइज इट्स कॉल्ड क्राइम रिपोर्ट। So if somebody is reporting a crime and on the basis of that report you want to convict certain individual who has committed the wrong or who has violated the law, तो मतलब that report should be in जैसे कह लें कि it should be congruent to the statements of the विटनेसेस, अदरवाइज उसमें रहता कुछ नहीं है। सर ये जो अभी आपने बताया कि मतलब विटनेसेस की स्टेटमेंट की बेस पे केस डाउन भी आ सकता है, मतलब ख़त्म भी हो सकता है। सर तो बहुत से मतलब लॉयर्स भी बोलते हैं कि 161 के अंडर जो स्टेटमेंट दी जाती है पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इसकी लिटिल या नो एविडेंशियरी वैल्यू है, तो मतलब इसमें क्या हो सकेगा? करप्टेशन की हद तक है। अब उस टाइम पे जब वो ट्रायल में एविडेंस दे रहा होता है तो वहाँ पे अगर वो उसको करॉपरेट करे तो ये जजेस हमेशा अपनी बहुत सारी यू मस्ट हैव गॉन थ्रू नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स वेयर दे हैव जो है क्लियरली मेंशन्ड दिस फैक्ट कि जो है स्टेटमेंट व्हिच इज रिकॉर्डेड बाय इन द कोर्ट एंड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस जो है it accords with the statement which was recorded before the police under section 161। और फिर इसी तरह हमारे जजेस जब ये वही फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ जो अप्रेजल और एडमिसिबिलिटी है। बहुत सी जगहों पे ये अब ये भी देखेंगे कि जहाँ पे जज जी कह रहे हैं कि जहाँ पे corroboration नहीं हो सकी, तो वहाँ पे ये है कि the witnesses have brought about improvements in their statements in order to align their version with prosecution version। तो वहाँ पे हमेशा जज लिखते हैं, ये इवन मंसूर अली शाह साहब माशाल्लाह हमारे जितने बड़े बड़े
जज साहिबान हैं जो जिनकी जजमेंट्स जो हैं वो हमें एजुकेट करती हैं, ब्रदर अब्दुल्ला साहब हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको अगर हम बात पढ़ें तो उनमें ये ज़रूर वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या किसी जो विटनेस ने अपनी 161 की स्टेटमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं वो लेके आया ताकि वो उसे अलाइन कर ले अपनी एफआईआर की स्टोरी के साथ। जी जी। तो वो अगर वो कोर्ट में लेके आया है तो उसकी विटनेस उसकी जो स्टेटमेंट है या तो उसे डिस्कार्ड करेंगे या उसकी वैल्यू जो है वो उसको अंडरमाइन करेगी ये चीज़ जो है। सर अब ये 161 का बयान हो गया, इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने मेरे नज़दीक पेश होते हैं 164 के अंडर, तो उसकी कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक क्या एविडेंशियल वैल्यू, उसमें कन्फेशन वगैरह का भी मतलब होता है साहब? जी जी, वो 164 तो एक एविडेंस उसको समझा जाता है कि स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। उसमें क्योंकि एज फार एज द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड इज कंसर्न्ड, इवन द विटनेस स्टेटमेंट इज गिवन प्रायोरिटी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो सकती हैं 164 में, विटनेस की भी और एक्यूज्ड की। लेकिन इसकी बहुत सारी चीज़ों में जब हम देखें तो वायलेशन भी हो जाती है। तो वो जो प्रोसीजर दिया गया है 364 में कि 164 को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो प्रोसीजर जो है वो दैट हैज़ टू बी फॉलोड विद लेटर एंड स्पिरिट। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली देयर आर इंस्टांसेस ऑफ से कह लें कि केयरलेसनेस, इंस्टांसेस ऑफ लैप्सेस वहाँ पे आते हैं। तो उसकी वजह से ये है कि एक तो ऑब्वियसली वो एक्यूज्ड ही अगर स्टेटमेंट है तो कंप्लेनेंट शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन हिम। इसी तरह विटनेस की स्टेटमेंट है तो एक्यूज्ड शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। सर ये 164 में उसी वक्त क्रॉस एग्जामिन की भी अपॉर्चुनिटी मतलब होनी जी चाहिए? ये है उसके अंदर, उसके प्रोसीजर के अंदर है कि ये आपने करनी है। हाँ ये जो एक्यूज्ड का तो अगर आप जो है वो देखें 164 को तो विटनेस तो नहीं, लेकिन एक्यूज्ड की हद तक तो ये डेफिनेटली मैटर ऑफ राइट है कि वो जो है वो जो भी स्टेटमेंट दे वो क्रॉस एग्जामिन होने के बगैर तो एक समझ लें कि वो एविडेंस होती नहीं unless both the parties are given the opportunities to question the testimony which is given before the court। तो ये यहाँ पे है फिर मतलब है कि जज इज़ रिक्वायर्ड टू मेक श्योर एंड द मजिस्ट्रेट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक श्योर कि ही इज़ नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर बाय द पुलिस। वो जो स्टेटमेंट तो खुद तो नहीं वो आ जाता, ये तो बहुत कम केसेस में होता है जो बाहर फिर रहा है और खुद ही आ गया। ये दिस स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हेन more than 90% of the cases police will bring। तो वो पुलिस को बाहर भेजेंगे उसको। हाँ अगर जो है वो उसके शैकल्स रिमूव करेंगे एक्यूज्ड के, फिर उसको आप सोचने का मौका, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्टेटमेंट अदरवाइज इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट यू, थिंक ओवर इट। उसको बिठा के टाइम देना पड़ेगा। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें फिर ये है कि ऑब्वियसली उसको क्रॉस एग्जामिन का मौका जो है वो भी वो बाद में ट्रायल स्टेज पे भी वो, लेकिन ये कि ऑब्वियसली मौका तो देना पड़े कि अगर वो बिल्कुल आप उसको समझेंगे वन साइडेड वर्जन तो नहीं कोर्ट्स में बिलीव किया जाता। यही तो फ़र्क है जो एग्जेक्टिव और हमारी जुडिशल प्रोसीडिंग में कि यहाँ पे वो मतलब नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड जो तो है, ये दोनों को ही सुनना पड़ता है। तो लेकिन ये इसकी तो है काफ़ी अच्छी, इसकी तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंशियल वैल्यू है। मगर फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स आई एम सीइंग के प्रोविजन इज समटाइम्स मिसयूज्ड कि इसमें क्योंकि ये भी है कि व्हेन इट कम्स टू द विटनेस स्टेटमेंट तो इट कैन बी रिकॉर्डेड बाय द magistrate not having jurisdiction over the case। तो अब ये है कि बाज़ औक़ात सिंध में ऐसे बहुत केसेस हुए कि जहाँ मतलब किडनैप हुए हैं माइनॉरिटीज़ के बच्चे, तो पेरेंट्स ने FIR रजिस्टर करवाई है लेकिन
लाहौर में आके बच्ची ने बयान दे दिया है कि 164 का कि जी मतलब आई वेंट विद दी किडनैपर विद माय फ्री कंसेंट। तो इवन इस पे बहुत बड़े बड़े अब तो जो है वो जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज वाले केसेस भी आए हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें सर्टनली आई वुड बिलीव कि ये कोर्ट शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड क्लैरिफाई दिस रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट फर्दर कि आई मीन ये थोड़ा सा मेरी नज़र में एज फार एज माई ओन ओपिनियन इज़ कंसर्न, आई मीन हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है कि दिस इज़ समथिंग विच इन माई माइंड इज़ इनकरेजिंग underage marriages as well as religiously converted marriages। तो ये क्योंकि जिस तरह का हमारी सोसाइटी है इसमें एक दफ़ा कोई बच्ची जो है वो चली जाए किसी के साथ तो एक तो बहुत कम रह जाता है कि पेरेंट्स उसको वापस या सोसाइटी उसको वापस एक्सेप्ट करेगी, तो फिर वो अपने टॉर्मेंटर के साथ ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो जाए। वो टॉर्मेंटर जो है वो उसके अगेंस्ट अगर कोई FIR आप पेरेंट्स बच्ची के दर्ज भी करवाते हैं तो वो कह लेगा कि ठीक है मतलब इफ़ यू वांट टू रूइन योर लाइफ तो यू कैन गो अहेड विद द केस, अदरवाइज मतलब वी कैन लिव एज ए हैप्पीली मैरिड कपल। तो वो फिर वो भी हो जाता। तो ये थोड़ा सा एक है इस चीज़ में वो इसमें अभी दुआ जहरा वाला केस भी काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था उसके बारे में। जी जी वो तो काफ़ी उसको आया। और फिर अब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 की बातें अब आई, हमें तो याद भी नहीं था कि ये एक्ट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये कि एक दफ़ा जब मैजिस्ट्रेट के पास ये उसी केस को थोड़ा सा देखें तो उसमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि जी वो एक मेडिकल रिपोर्ट है जो बता रही है कि बच्चे की एज जो है वो 16 है, कोई बच्चे की अपनी जो है वो कहानी ये है कि 18 प्लस है, और वो जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो 12-13 है। तो ये जो है ये मतलब उसको फिर जब रिकॉर्ड करना है तो आई एम नॉट श्योर बट लेकिन समहाउ इट शुड बी linked with your मतलब at the time of recording that statement your age should be linked to the record which is being maintained by NADRA। ये कौन सा मुश्किल काम है कि आप बेफाम के साथ हैं जो वो तो कुछ तो है ही नहीं, अब तो बेफाम होगा अगर अंडर एज है या फिर तो आपने हर किसी को यहाँ पे कंप्यूटराइज कार्ड दे दिए हैं, इवन ट्रांसजेंडर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट ले दिया। तो वो फिर ये कौन सा मुश्किल काम है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये कहा जाए कि वो जो वहाँ पे स्टेटमेंट दी है उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो नादरा से कर ले कि अगर तो वो ठीक है वो सुई जुरस है और मतलब है कि मतलब शी इज़ ऑफ एज तो एंड एडल्ट एंड शी फ्री टू एंटर इनटू मैरिज। लेकिन कि अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ ये प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज से जान छुड़ाने के लिए आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फैमिलीज़ के लिए हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस कल्चर के लिए हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सर तो अब 164 का बयान हो गया, उसके बाद जुडिशियल लॉकअप में भेज देते हैं या जैसा भी होता है, तो सर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट या चालान जो होता है, अब चालान का कानूनी शहादत ऑर्डर उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ वो मतलब जाहिर है कि ये ट्रायल स्टार्ट उस वक्त होता है कि वंस ही चालान रिपोर्ट और ये इट हैज़ टू बी पास्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उससे उसको इसीलिए प्रोसिक्यूशन का महकमा तैयार किया गया। इसमें तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन विच हैज़ टेकन प्लेस, साइट प्लान्स जो बनाए, रिकवरी मीमो जो इकट्ठे किए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, सब कुछ जो है वो उसका अंदर आ जाएगा।
तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी क्योंकि डिले होती है तो हमारे इंटरिम चालान अब दे देते हैं। ये भी एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद ये अब होता है कि इंटरिम दे देते हैं ये 14+3 17 डेज से। तो जो है मगर जो ये कह लें कि वो है इसकी वही चीज़ है कि ऑब्वियसली ये एक एक जो उसने स्टेप लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें आपने जो जज ने अपना माइंड अप्लाई करना है in order to see whether there is any से कह लें कि लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, या वो जो है कोई ऐसी चीज़ है जिसका बेनिफिट कैन बी गिवन टू द एक्यूज्ड, तो वो सब चीज़ तो ज़ाहिर है चालान से ही उसे नज़र आएगी, जिसमें साइट इंस्पेक्शन होगी, जिसमें अब जैसे एक चालान से बड़ी आसानी से आप ये जो उसके अंदर वो है मैप्स बनाए जाते हैं, स्केल्स बनाए जाते हैं, तो वो जो है वो एक्सपर्ट्स जब मैप बनाएं तो ये भी देखा जा सकता है कि एफआईआर में जो है वो स्टेटमेंट ये है कि एक्यूज्ड को जो है वो इस जगह पे खड़ा था और गोली किस जगह से आई है, और जो है वो इसको मैंने ऐसी एक जजमेंट मेरी नज़र से गुजरी कि इसमें स्केल की बुनियाद पे ये केस जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है रुइन हो गया, इस वजह से कि वो ये कहा गया कि एक्यूज्ड जो है वो ही वाज फेसिंग दी जो है विक्टिम, लेकिन जो है वो वुंड्स वर फाउंड ऑन दी बैक ऑफ द विक्टिम। तो उन्होंने ये फिर जाहिर है कि ऑब्वियसली वो ये तो नहीं है सामने हो ही ना, या तो ना एग्जिट वुंड, लेकिन देयर वर ओनली 2 वुंड्स एंड दे वर ऑन दी बैक ऑफ द विक्टिम। तो इन दी जस्ट कह लेंगे स्केल इट वाज शोन कि ही वाज फेसिंग दी एक्यूज्ड, तो वो उससे ही काफ़ी, तो इस तरह चालान में तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि रिकवरी विटनेसेस जो है वो नहीं किए, अगर आपने इन लोकल इनहेबिटेंट्स को उसकी बजाय जो है वो पुलिस वाले डाल दिए हैं, कोई डाला ही नहीं, तो वो भी रिकवरी जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप चालान से जान सकते हैं। सर, तो लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि 154 मतलब क्रिमिनल को ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए या एफआईआर होती है या कंप्लेंट होती है, तो क्या कंप्लेंट की भी वही एविडेंशियल वैल्यू है जो एफआईआर की है? नहीं, होनी ही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो। थोड़ा सा कंप्लेंट केस में हमारे ऑल्दो के वो मतलब एक जैसा ही सिस्टम तो दिया गया है कि अगर पुलिस वाले नहीं कर रहे तो दूसरा जो है वो, लेकिन कंप्लेंट केस में जो है वो एक इंक्वायरी होती है कि जिसमें ये देखा जाता है कि जो whether the accusation is actually made out, तो वो जो है वो तहसीलदार से भी करवा लेते हैं, मजिस्ट्रेट पास का वो अपने एडी जो प्रोसिक्यूशन के लोग बैठे होते हैं उनसे भी करवा लेते हैं, किसी वकील साहब को भी कह सकते हैं। तो ये है कि ये जो है इस चीज़ में तो कंप्लेंट में फिर समन, फिर वारंट, ये इशू होते होते तक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऑब्वियसली क्योंकि कोई वो चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे कह लें कि उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू एफआईआर केस, क्योंकि इसका तो ऑब्वियसली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक रिकॉर्ड भी रखना है और उनको डिस्पोजल भी शो करना है, लेकिन उसमें क्योंकि वो आया होता है एक कोर्ट की तरफ से, तो उस तरह उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम, और स्पेशली पुलिस विटनेसेस आते ही नहीं हैं उनका, बहुत बड़ी ये एक हैंडीकैप है इसके अंदर कंप्लेंट केसेस में, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें।
मगर ये वाली बात जो है वो हमेशा इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ऑब्वियसली एविडेंस जो है वो एक मतलब एक ऐसा लॉ है कि जो एक ऐसा प्रोसीजर लॉ है which certainly one has to master in order to do well as a lawyer or in order to do well as a legal practitioner. और अगर आपको पता है कि कोई चीज़ एडमिसिबल नहीं है, जैसे कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, ये चीज़, तो ये चीज़ें जो है वो एक तो कोर्ट का वक्त ज़ाया करने से बचाते हैं, दूसरा ये कि ऑब्वियसली ये आपको एक एज देता है आपके एडवर्सरी पे, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि हमारी नई जो है लॉयर्स की यंग लॉट है, मतलब मैनी ऑफ देम आर जो है प्राइमरीली फोकस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, और वहाँ पे फिर थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है कि QSO की उस एप्लीकेशन नहीं है, तो इसलिए वो इसको जो है वो थोड़ा से कह लें कि भूल जाते हैं, या मतलब इसके ऊपर दे डू नॉट पुट इन एज मच एफर्ट एज इट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस रिमार्केबल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। इसके ऊपर तो शायरी करते हैं लोग। ये फिप्सन की बुक आपने देखी होगी, जो बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस लॉ इन डेप्थ, तो है तो वही ना, लॉ ऑफ एविडेंस, इसका नाम बदल के तो कानून शहादत हो गया। इसकी वो जिस तरह की उसने इंटरप्रिटेशंस आपको दी हुई हैं कि जैसे बेस्ट एविडेंस, यू आर सपोज टू प्रेजेंट बेस्ट एविडेंस अनलेस, और कि ये जब हम करते हैं ये जैसे कह लें कि कोई भी जज जब ये डिसाइड करता है, फैसला करता है किसी केस का, तो वो ये ज़रूर देखता है कि ये जो मेजर विटनेस है या मेजर एविडेंस है उसको कहीं विदहोल्ड तो नहीं किया जा रहा ऑन आइदर साइड। तो इफ़ इट इज़ विदहेल्ड तो 129G जो है QSO का, वो दैट विल रेज द प्रिजम्पशन कि इफ़ द ओरिजिनल इज प्रोड्यूस्ड तो इट विल टेल अपॉन द विदहोल्डर, इट विल टेल अगेंस्ट द विदहोल्डर। तो ये एक बदकिस्मती से ये भी एक चीज़ है जो कि थोड़ी एक इसको मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ऐसा हुआ पिछले, बहुत ही अच्छा केस है जो बहुत डेप्थ में उसको डिसाइड किया गया। 65+ पेजेस है, मेरा ख्याल है 95 पेजेस है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट, लेकिन ये अहमद उमर शेख वर्सेस स्टेट का जो डैनियल पर्ल का केस है भी डिसाइड, तो इसमें भी ऐसे है कि वाइफ ऑफ द जो है विक्टिम, वो उसकी टेस्टिमनी वाज गिवन अप बाय द प्रोसिक्यूशन, तो इट वाज टेकन एज ए सिक्योरिटी बिग लेकिन केस। ये जो जिसको थ्रेट्स दिए गए, प्राइमरली शी वाज द विटनेस ऑफ द emails in which ransom was demanded, लेकिन मतलब why was she given up? तो ये presumption under the कानून शहादत ये रेज होती है कि had she been produced for the court, तो she might not have sided with the prosecution. सो नाज़रीन, बहरिया यूनिवर्सिटी लीगल कॉर्नर की आज की एपिसोड में हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्री ट्रायल प्रोसीजर के बारे में जिक्र किया और उसको कानूनी शहादत ऑर्डर के साथ लिंक किया, किस चीज़ की एविडेंशियल वैल्यू है और किसकी corroboratory। इस पे डॉक्टर प्रोफेसर उस्मान हमीद साहब ने हमें अपना टाइम दिया और इन डेप्थ कन्वर्सेशन की। आप हमें इसमें अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस टुडे एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। खुदा हाफिज़।